اور اب خبریں تفصیل سے۔ تائیوان کے سوال پر چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ تائیوان کے سوال پر امریکی صدر جو بائیڈن کی وارننگ کا چین نے سخت جواب دیا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ تائیوان کی آزادی کی کسی بھی کوشش کو پوری طاقت سے کچل دے گا۔ اتوار کو چینی وزیر دفاع جنرل وی فینگ نے امریکہ پر تائیوان کی آزادی کی حمایت کرنے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ تائیوان کے حوالے سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور چین کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ تائیوان کے سوال پر چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ ایشیائی سلامتی سے متعلق سنگریلا ڈائیلاگ میں چینی وزیر دفاع نے کہا کہ اگر کسی نے تائیوان کو چین سے الگ کرنے کی کوشش کی تو ہم اس کے ساتھ جنگ کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ ہم کسی بھی قیمت پر لڑیں گے اور آخری دم تک لڑیں گے۔ چینی وزیر دفاع کا یہ تبصرہ امریکی صدر جو بائیڈن کے چین کے نام پیغام کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ تائیوان کے قریب لڑاکو جہازوں کو اڑا کر خطرے سے کھیل رہے ہیں۔ امریکہ نے کہا کہ اگر تائیوان پر حملہ ہوا تو وہ اس کی حفاظت کے لیے اپنی فوج بھیجے گا۔ تائیوان خود کو ایک خود مختار ملک سمجھتا ہے، جبکہ چین اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے، لیکن تائیوان امریکہ کو اپنا سب سے بڑا اتحادی مانتا ہے۔ امریکہ میں یہ قانون ہے کہ اگر تائیوان اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اسے اس کی مدد کرنی ہوگی۔ تائیوان کے سوال پر چین اور امریکہ کے درمیان کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ چین تائیوان کے ڈیفنس زون میں لگاتار لڑاکو طیارے بھیج رہا ہے۔ گزشتہ ماہ اس نے وہاں اپنے سب سے بڑا ہیلی کاپٹر اڑایا تھا، جبکہ امریکہ نے اپنے کئی جہاز تائیوان کے سمندروں سے بھیجے ہیں۔ ایک بڑا خدشہ یہ ہے کہ اگر چین نے تائیوان پر حملہ کیا تو جنگ چھڑ سکتی ہے۔ چین پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو وہ اپنے جزیرے پر دوبارہ دعویٰ قائم کرے گا، چاہے اس کے لیے طاقت کا ہی استعمال کیوں نہ کرنا پڑے۔ لیکن اکثر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس وقت جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس بات پر بحث گرم ہے کہ کیا چین کے پاس اتنی فوجی طاقت ہے کہ وہ کامیاب حملہ کر سکے۔ دوسری جانب تائیوان اپنی فضائی اور بحری طاقت پہ مسلسل اضافہ کر رہا ہے، لیکن بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر یہ ٹکراؤ جنگ کی طرف سے بڑھتا ہے تو یہ نہ صرف چین بلکہ پوری دنیا کے لیے مہلک اور مہنگا ثابت ہوگا۔ انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایسٹ ایشین اسٹڈیز کے سینئر فیلو ولیم چنگ کہتے ہیں کہ چین کی طرف سے بہت سارے بیانات آ رہے ہیں، لیکن تائیوان پر حملے کے بارے میں سوچتے ہوئے چین کو خطرات کو ذہن میں رکھنا ہوگا، خاص طور پر ایسے وقت میں جب یوکرین کا بحران جاری ہے۔ روس کے مقابلے میں چین کی معیشت کے عالمی روابط کہیں زیادہ ہیں۔ چین مسلسل کہتا رہا ہے کہ وہ تائیوان کے ساتھ پرامن طریقے سے الحاق کرنا چاہتا ہے۔ گزشتہ اتوار کو چین کے وزیر دفاع نے بھی اسی بات کا اعادہ کیا۔ چین امن چاہتا ہے، لیکن اگر اسے اکسایا گیا تو وہ کارروائی کرے گا۔ ایک چیز چین کو مشتعل کر سکتی ہے اور وہ یہ کہ تائیوان باضابطہ طور پر خود کو آزاد قرار دے دے، لیکن تائیوان کے صدر اسے سختی سے گریز کرتی رہی ہیں۔ تاہم وہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ تائیوان پہلے سے ہی ایک خود مختار ملک ہے۔ امریکہ ایشیا میں فوجی تنازع چھیڑنے سے ہچکچائے گا۔ اس نے بارہا اشارہ دیا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا۔ سانگریلا ڈائیلاگ میں امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بھی موجود تھے۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ امریکہ تائیوان کی آزادی کی حمایت نہیں کرتا اور نہ ہی وہ نئی سرد جنگ چاہتا ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ دونوں سپر پاورز تائیوان کے سوال پر ثابت قدم ہے۔ دونوں کو سخت نظر آنا ہے۔ وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے۔ امریکہ اور چین ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خطرہ بڑھا رہے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ روسی فوج نے بدھ کے روز فوٹیج شیئر کی جس میں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ مغربی لیویو کے علاقے میں گولہ بارود کے ایک ڈپو پر طویل فاصلے تک مار گرانے والے میزائل داغے ہیں۔
रूसी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा है कि रूसी अफवाज ने पोलैंड के सरहद के करीब वाक़े कस्बे में डिपो को तबाह करने के लिए कैलिबर मिसाइल का इस्तेमाल किया। इन्होंने कहा कि नाटो की तरफ से फराहम किए जाने वाले हथियारों के साथ साथ M777 हाउट्ज़र्स के गोली भी वहां जखीरे किए गए थे। रूसी वज़ारत दिफा ने मैदान से फायरिंग करने वाली फौजी गाड़ियों की फुटेज और फजाई तस्वीर भी शेयर की हैं, जिनमें फजाई हमले दिखाए गए हैं। और अभी एक और अहम खबर, चीनी सदर शी जिनपिंग ने रूसी रहनुमा व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बात करते हुए खुद मुख्तारी और सलामती के मसाइल पर रूस के लिए अपने मुल्क की हिमायत का इयादा किया। चीन के सरकारी नशरियाती इदारे सीसीटीवी के मुताबिक शी ने पुतिन से कहा कि तमाम फरीकों को जिम्मेदारी के साथ यूक्रेन के बहरान के मुनासिब हल के लिए जोर देना चाहिए। चीन आगाज से ही यूक्रेन पर रूस के हमले पर तनकीद करने से एतराज करता है, जबकि नाटो और मगरिब पर मॉस्को को हमले के लिए उकसाने का इल्जाम लगाया। यूक्रेन पर हमले से कबल पुतिन और शी जिनपिंग ने फरवरी में बीजिंग में मुलाकात की और एक मुआहदे पर दस्तखत की, जिसमें यह अहद किया गया कि फरीकैन के दरमियान ताल्लुकात की कोई हद नहीं होगी। ताहम यह वाज़ेह नहीं है कि चीनी सदर को रूस के यूक्रेन पर हमला करने के मंसूबे का इल्म था। इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अमरीकी दबाव के खिलाफ पीछे हटते हुए नाटो की किसी भी तौसीह के खिलाफ अपनी मुखालफत का ऐलान किया और इस बात की तस्दीक की कि ताइवान का जजीरा चीन का हिस्सा है। सीसीटीवी ने रिपोर्ट किया कि शी ने पुतिन को बताया कि चीन दो तरफा अमली ताउन की मुस्तहकम और तवील मुद्दती तरक्की को फरोग देने के लिए रूसी फरीक के साथ काम करने के लिए तैयार है। रूसी अफवाज यूक्रेन के अहम शहर सेवेरोडोनेस्क में अपनी कार्रवाई बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेनी दस्ते हथियार फेंक दें तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस डॉनबास के खित्ते पर मुकम्मल कब्जे की कोशिश में है। ज़ेलेंस्की ने इस मार्के को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा है कि यूक्रेन की जंग के मुस्तकबिल का तयन अब सेवेरोडोनेस्क की लड़ाई ही करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। रूसी अफवाज यूक्रेन के अहम शहर सेवेरोडोनेस्क में अपनी कार्रवाई बदस्तूर जारी रखे हुए हैं। यूक्रेनी खित्ते डोनबास के इस अहम मशरकी शहर के ज्यादातर हिस्सों पर रूसी दस्तों ने कब्जा कर लिया है। ताहम कुछ हिस्सों में यूक्रेनी फौजी जवान मुजाहमत कर रहे हैं। लोहांस्क के गवर्नर ने बताया कि रूस ने अपने भारी तोपखाने का फायदा उठाते हुए यूक्रेन की अफवाज को पसपा कर दिया है, जबकि इस लड़ाई के नतीजे में शहर में बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है। रूसी हुकूमत ने यूक्रेन की जंग में अपनी तमाम तर तवज्जो अब इसी इलाके पर मरकूज कर रखी है। दूसरी जानिब रूसी अफवाज ने सेवेरोडोनेस्क में मुजाहमत करने वाले यूक्रेनी फौजियों से मुतालबा किया है कि वो हथियार फेंक दें। बरतानवी वजारत दिफा के मुताबिक सेवेरोडोनेस्क में वाक़े इजोट केमिकल प्लांट में सैकड़ों शहरी और कुछ फौजी पनाह लिए हुए हैं, जिनके इनखला की कोशिशों को तेज करने की जरूरत है। अगरचे रूसी अफवाज ने इस शहर पर कब्जा कर लिया है, ताहम ये केमिकल प्लांट और उसके करीबी इलाके अभी तक यूक्रेनी अफवाज के कंट्रोल में हैं। रूस ने कहा है कि अगर यूक्रेनी दस्ते हथियार फेंक दें तो उन्हें कुछ नहीं किया जाएगा। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस डोनबास के खित्ते पर मुकम्मल कब्जे की कोशिश में है। ज़ेलेंस्की ने इस मार्के को इंतहाई अहम करार देते हुए कहा है कि यूक्रेन की जंग के मुस्तकबिल का तयन अब सेवेरोडोनेस्क की लड़ाई ही करेगी। Удар був по Львівській і Тернопільській областях. І ми знову і знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає на достатньому рівні, але саме у нашій державі і саме зараз найбільше в Європі потреба саме у такій зброї. Затягування з її наданням не може мати. Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Звичайно, темою номер 1 була оборонна підтримка.
Канада у ній серед лідерів. Подякував за те, що Канада стала і першою державою, яка перевела на українську. नेटो के सरबराह का कहना है कि मगरबी ममालिक यूक्रेन को मजीद भारी हथियार फराहम करें क्योंकि वो मुल्क के मशरकी हिस्से में रूस का मुकाबला कर रहा है। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन के पास ज्यादा हथियार होने चाहिए। 24 फरवरी से जारी रूस यूक्रेन जंग में अटॉर्नी दफ्तर के जारी करदा बयान के मुताबिक कम से कम 313 बच्चे हलाक हो चुके हैं, जबकि 600 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो चुके हैं। 2000 के करीब तालीमी इदारों को नुकसान पहुंचा है। मुतासिरा तालीमी इदारों में से 200 मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के एक अहलकार का कहना है कि यूक्रेन में तकरीबन 2/3 बच्चे जंग की वजह से बेघर हो गए हैं। First and foremost, I think we've got to be clear that the numbers are staggering and they bear repeating. Nearly 2/3 of Ukraine's children are displaced, whether displaced inside the country or those who have fled across borders as refugees. And children have been forced to leave homes, friends, toys, treasured belongings, family members, and many of them alone with their mothers facing uncertainty about their future. यूक्रेन के सदर ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो रूस पर पाबंदियां मजीद सख्त करे और खबरदार किया है कि रूसी अफवाज दूसरे ममालिक पर हमला कर सकती हैं। TASS की रिपोर्ट के मुताबिक डोनबास और क्रीमिया के रूस से इल्हाक शुदा इलाके मारियोपोल, मिलिटोपोल और खेरसोन के मकबूजा इलाकों के दरमियान का रास्ता अब शहरियों की आमदरफ्त के लिए खुला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मिस्र, इसराइल और यूरोपीय यूनियन के दरमियान कुदरती गैस की फरोख्त बढ़ाने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किया गया है। इस मुआहदे का मकसद यूरोपीय यूनियन का रूस से गैस सप्लाई पर इन्हिसार को कम करना है। यूरोपीय कमीशन के सरबराह ने कहा है कि इस मुआहदे पर काहिरा के एक 5 स्टार होटल में मुहर लगाई गई है, जिसमें इसराइल मिस्र के रास्ते EU को मजीद गैस भेजेगा। मुआहदे के मुताबिक यूरोपीय यूनियन मिस्र और इसराइल को अपने आबी इलाकों में गैस की पैदावार और तलाश में मदद करेगी। हालांकि फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका है कि यूरोपीय यूनियन इसराइल या मिस्र से कितनी गैस दरामद करेगी। गुज़िश्ता साल यूरोपीय यूनियन ने अपनी गैस का तकरीबन 40% रूस से दरामद किया था, लेकिन यूक्रेन पर हमले के बाद यूनियन ने रूसी तेल पर से अपने इन्हिसार को कम करना शुरू कर दिया है और दूसरे ज़राए की खोज में है। इसराइली वजीर तवानाई किरन इल्हारर ने कहा है कि यह मुआहिदा रूस के यूक्रेन पर हमले का नतीजा है, जिसकी वजह से यूरोपीय तवानाई बहरान पैदा हुआ है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह मिस्र और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए ताउन को नुमाया करता है। मिस्र 1979 में इसराइल के साथ अमन कायम करने वाला पहला अरब मुल्क है। बरतानिया से मुहाजिरीन को लेकर रवांडा जाने वाली एक खुसूसी परवाज आखिरी वक्त में मनसूख कर दी गई। यूरोपीय अदालत बराए इंसानी हुकूक ने खबरदार किया था कि जिन मुहाजिरीन को जबरी तौर पर रवांडा भेजा जा रहा है, उन्हें वहां हकीकी किस्म के खतरात लाहक हैं, इसलिए ऐसा न किया जाए। लंदन हुकूमत 7 मुहाजिरीन को मुल्क बदर करते हुए मशरकी अफ्रीका की उस रियासत भेजना चाहती थी। बरतानवी वजीर दाखिला प्रीति पाटिल ने यूरोपीय अदालत के इस फैसले को मायूसकुन करार देते हुए इंदिया दिया है कि मुहाजिरीन की मुल्क बदरी के लिए दूसरी फ्लाइट की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर आलमी मंजर। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि नेटो इत्तेहाद को तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान की तरफ से उठाए गए खदशात को संजीदगी से लेना होगा। स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि नेटो का कोई दूसरा इत्तेहादी नहीं है जिसने तुर्की से ज्यादा दहशतगर्दाना हमलों का सामना किया हो। उन्होंने कहा कि वो खुश हैं कि स्वीडिश हुकूमत ने मुस्तकबिल में नेटो की रुकनियत की जिम्मेदारियां संभालने की एक हिस्से के तौर पर तुर्की के खदशात को दूर करने के लिए अपनी तैयारी की तस्दीक की है। My message on Swedish and Finnish membership is that I strongly welcome that. It's an historic decision. It will strengthen them. It will strengthen us. But at the same time, we have to take seriously those concerns that are raised by President Erdogan, because actually Turkey faces some serious terrorist threats. There is no other NATO ally that has suffered more terrorist attacks than Turkey.
तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि तुर्की का कौमी कैरियर यानी जो एयरलाइंस है वो अब तुर्क एयरलाइंस के बजाय तुर्क हवा युलारी के नाम से जाना जाएगा, ताकि उनके मुल्क को बैनुल अक़वामी सतह पर तुर्की के बजाय तुर्की के नाम से जाना जाए। इस माह के शुरू में अनक़रा ने अक़वाम मुत्तहिदा को एक ख़त भेजा था जिसमें मुल्क के नाम पर बाज़ाब्ता तौर पर तुर्की रजिस्टर करने की दरख्वास्त की गई थी। अर्दोगान की हुकूमत ने कहा है कि तुर्की का नाम तुर्क सकाफत और अक़दार की बेहतर नुमाइंदगी करता है। हालांकि मुबस्सरीन का कहना है कि ये इक़दाम तुर्की नामी परिंदे से खुद को अलग करने की कोशिश का एक हिस्सा है। अक़वाम मुत्तहिदा और नेटो ने बाज़ाब्ता तौर पर तुर्की के बजाय तुर्की को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन्स स्टोल्टनबर्ग ने इस हफ्ते हेलेंस्की और स्टॉकहोम के दौरों के दौरान मुल्क को तुर्की के नाम से पुकारा था। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हिंदुस्तानी गेहूं और गेहूं के आटे की बरामद पर 4 माह के लिए पाबंदी आयद कर दी है। मुत्तहिदा अरब अमारात की खबर रसां एजेंसी WAM के मुताबिक इस पाबंदी का इतलाक गेहूं की तमाम अक़साम पर होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत इक़्तिसादियात का कहना है कि जो कंपनियां हिंदुस्तानी नस्ल के गेहूं या हिंदुस्तानी गेहूं से बना आटा जो 13 मई से कबल बरामद किया गया था उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहर फरोख्त करने के लिए वजारत से इजाज़त लेना होगी। कंपनियों को तमाम दस्तावेज़ात और फाइलें जमा कराना होंगी जिसमें इम्पोर्ट से मुतालिक तमाम मालूमात मौजूद होंगी। ये फैसला गेहूं की बढ़ती हुई कीमतों के पेश नज़र किया गया है। जामे इक़्तिसादी शराकत दारी पर दस्तखत करने के बाद हिंदुस्तान ने घरेलू इस्तेमाल के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को गंदम की बरामद की इजाज़त दी थी। रूस यूक्रेन जंग ने दुनिया भर में ज़राअत और खुराक की फराहमी पर बहुत बड़ा असर डाला है, जिसकी वजह से दुनिया भर में गंदम की कीमत आसमान को छू रही है। यही वजह है कि हिंदुस्तान ने 13 मई को गंदम की बरामदात को मुफ्त से ममनुआ ज़ुमरे में डाल दिया था, जिसके बाद आलमी सतह पर गेहूं की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। इस साल हिंदुस्तान में सरकारी गंदम की खरीदारी 15 साल की कम तरीन सतह पर है। जेट ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से फजाई सफर के किरायों में भी इजाफा देखा जा रहा है। जनवरी से लेकर अब तक एयरलाइन के किरायों में 47% इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से एयरलाइंस की सीटों की तादाद में कमी वाक़ हुई है। अमरीकी तहकीकी फर्म आयोडोब डिजिटल इनसाइट्स ने कहा है कि रियासत-ए मुत्तहिदा के अंदर परवाज़ों की बुकिंग अप्रैल के मुकाबले मई में 2.3% कम हुई है। मई में अमरीकी परवाज़ों की कीमतें 2019 के इसी महीने के मुकाबले में 30% ज़्यादा थीं। हवाई किराए इन बहुत से अवामिल में से जो महंगाई की बुलंद तरीन शरह के लिए जिम्मेदार हैं। एयरलाइंस हुक्काम का कहना है कि वबाई अमराज के 2 साल बाद सफ़र की मांग मुस्तहकम है। जहां तक कीमतों का ताल्लुक है, वो कहते हैं कि उन्हें जेट ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों को पूरा करने के लिए किरायों में इजाफा करने की ज़रूरत है। कई दहाइयों से जारी तनाज़ात की वजह से पहले ही अफगानिस्तान की मईशत तबाह हो चुकी है। दूसरी तरफ ईंधन की आसमान छूती कीमतें और बैरून ममालिक से तरसीलात ज़र की आमदनी पर पाबंदी की वजह से अफगान अवाम को बेहद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दारुल हुकूमत काबुल में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में बेतरतीब 13.4 और 16.4% इजाफा हुआ है, जिसके बाद वहां पेट्रोल 101 अफगानी और डीजल 85 अफगानी फी लीटर हो गया है। माहाना 20,000 अफगानी यानी 17,500 रुपए कमाने वाले अफगानी अवाम अखराजात में इजाफे से परेशान हैं। ईंधन की बढ़ती हुई कीमत ने टैक्सों और बस मालिकान को किराया बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है, जिससे लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। अफगान हुक्काम का कहना है कि मुल्क की मईशत आलमी अफरात ज़र के बहरान का शिकार है, जबकि उसे अमरीकी मालियाती इदारों की जानिब से बैरून मुल्क नकद तरसीलात पर पाबंदी और ईरानी तेल की बरामदात की मुअत्तली की वजह से भी नुकसान पहुंचा है।
वाईकॉम 18 ने 2023 से 2027 के सीजन के लिए बर्र-ए-सगीर में इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों को डिजिटल तौर पर स्ट्रीम करने की हुकूक हासिल कर लिए हैं। इसने हर सीजन में 18 गेम्स के खुसूसी पैकेज के लिए हिंदुस्तान के डिजिटल हुकूक भी हासिल किए हैं। आलमी सतह पर वाईकॉम 18 ने क्रिकेट के बड़े ममालिक समेत 5 में से 3 बैनुल-अक़वामी इलाकों में टेलीविजन के साथ साथ डिजिटल हुकूक भी हासिल किए हैं। वाज़ेह हो कि वाईकॉम 18 मारूफ ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल कंपनियों के पीछे छोड़कर खुद को डिजिटल मीडिया, एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के तौर पर कायम करता है। इन IPL हुकूक के साथ वाईकॉम 18 हिंदुस्तान के सबसे बड़े खेलों के इवेंट को मुल्क के कोने कोने तक ले जाने के काबिल हो जाएगा। ये IPL हर हिंदुस्तानी को हिंदुस्तान के हर हिस्से में दस्तयाब कराएगा, बशमूल 60 मिलियन फ्री डिश होम्स जो आज इस मकबूल मवाद तक रसाई हासिल करने के काबिल नहीं हैं। इस हवाले से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के डायरेक्टर नीता अंबानी कहती हैं कि खेल हमारी तफरीह का सामान है, हमें लुत्फ अंदोज करने के साथ साथ हमें मुत्तहिद भी करता है। क्रिकेट और IPL हिंदुस्तान के बेहतरीन खेल को जाहिर करता है। यही वजह है कि हमें इस अजीम खेल और इस शानदार लीग के साथ अपनी वाबस्तगी को मजीद गहरा करने पर फख्र है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम हर काम करते हैं। हमारा मिशन मुल्क के हर हिस्से और दुनिया भर में IPL के खुशगवार तजुर्बे को क्रिकेट के शायकीन तक पहुंचाना है।